Hello everyone. Today I am going to discuss about the electrocardiogram. Okay. In the previous lecture I have discussed about the structure of heart, physiology of heart, and in the next lecture I have discussed about the blood vessels, structure of blood vessels. In the other lectures I have discussed about the cardiac activity, conducting system of heart. So okay, these basic things I have discussed in the previous lecture. So today I am going to discuss about the electrocardiogram. Okay, what do you short form is ECG. You all have listened about the ECG. If anybody have a heart problem, anybody is suffering from the heart problem, any of the problem related to chest, then he or she, the person will go for the ECG. Okay, so ECG is done for seeing the heart activity. For if any disturbance caused in the heart activity, then it will go for the ECG, electrocardiogram. Okay, so how can we define this word electrocardiogram? So electrocardiogram is defined as a graphical representation. It is a graphical representation. Graphical representation. It is a graphical representation of electrical impulse, not the contraction and relaxation, of electrical impulse, of electrical impulse or electrical impulse or electrical activity of the heart. Activity of the heart. So electrocardiogram is defined as the graphical representation of electrical impulse, or activity of the heart. It is not the representation of contraction and relaxation. It is not the, हम इसमें जो contraction heart में हमें पता है, you know that in heart there is a contraction and relaxation of heart muscles, but this ECG is not the representation of contraction and relaxation of heart muscles. It is a graphical representation of the electrical impulse or activity of the heart. Whatever the activity is going on due to the contraction and relaxation, or due to the muscles, due to SA node conducting system, whatever the activity is going on in the heart muscles or performed by the heart muscles, these are known as these are represented in a paper with the help of a machine. Okay, it is known as a electrocardiogram, and the machine which is used just opposite. Okay, generally हम graph use करते हैं graph के लिए, but here we use graph for the graphical representation, and for the machine we use graph. Machine used is known as a electrocardiograph. Electrocardiograph. Okay, so there is difference between electrocardiogram and cardiograph. Electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity, and electrocardiograph is the machine which is used for the representation of this cardiac activity in a graph paper. So what we do in this electrocardiogram, for getting this electrocardiogram, what we have to do for in the patient, we have to use some leads. Some leads are fixed in the some fixed part of the body, and this lead then connected to the machine. Then this machine, after observing the electrical signals in the heart, and then represent it on the graph. Okay, so this is the electrocardiogram, ECG. Okay, now what happened in the electrical activity? What do you mean by the word electrical activity? Here we use the word electrical activity. यहाँ electrical activity क्या होता है? Electrical activity. So what is this electrical activity? We are talking about the electrical activity in heart. So what happens? Suppose this is the heart muscles. So due to the entry of sodium, सोडियम यहाँ पर एंटर किया, then what happens? सोडियम एंटर हुआ, then it causes the depolarization or contraction of heart muscle cells. Depolarization or contraction of heart muscles.
ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है, तो वी नो कि भाई मसल सेल्स इसमें क्या होता है, सोडियम की एंट्री हो जाती है। ड्यू टू द सोडियम एंट्री व्हाट हैपेंस, डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस विच इज नोन एज द कार्डियक contraction of cardiac muscles. Okay, now when these get contracted, these get ये contracted muscle हो गई, यहाँ पे तो contraction हो गया इसका, contracted, this is contracted muscle, this muscle is contracted. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, नाउ अब क्या होगा, पोटेशियम आयंस बाहर चले जाएंगे, पोटेशियम आयंस बाहर चले जाएंगे इसमें, देन व्हाट हैपन, पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, देन repolarization takes place. Due to this repolarization takes place. Okay, so this repolarization is known as a relaxation. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, repolarization और relaxation, relaxation. और here यहाँ क्या हो जाएगा, ये contraction और we can say systole, systole condition. We have already studied about the systole and diastole in the previous lectures. Okay, so here systole and here relaxation means diastole, diastole. ठीक है, so this is about the, this is known as the electrical activity. Now next thing, what are the components of this ECG? Okay, जनरली हम क्या देखते हैं, इस तरह का ECG में इस तरह की वेव आती है, इस तरह की, दिस इज वेव. ओके, जनरली हॉस्पिटल में देखते हैं कि कोई पेशेंट अगर एडमिट है हॉस्पिटल्स में तो क्या होता है कि इस तरह की उसकी वेव चलती है. सपोज वो, इफ द पेशेंट इज गोइंग टू बी डेड, सपोज वो डेड हो गया है तो क्या होगा, इस तरह से लंबी लाइन आ जाएगी, इस तरह से ब्लैंक, मतलब उसकी कार्डियक, कोई कार्डियक, नो मीन्स हियर नो कार्डियक एक्टिविटी, नो कार्डियक एक्टिविटी, यहाँ पर कोई भी कार्डियक एक्टिविटी शो नहीं होगी इसमें. ठीक है, ये क्या आपकी कार्डियक एक्टिविटी शो हो रही है. सो दिस वन, ये जो आपकी एक QRS पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इट विल फॉर्म्स अ वन कार्डियक साइकिल, इट इज ड्यू टू वन कार्डियक साइकिल, और वी कैन से वन हार्ट बीट, और वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ECG? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके, कंपोनेंट्स की बात करें हम, इसके कंपोनेंट्स of ECG. ओके, तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ECG में क्या आता है आपका, P, Q, R, S, T, चार होते हैं इसमें, P, Q, R, S एंड T. ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, इसको रिप्रेजेंट करें हम तो इस तरह से. ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें. ये आपका होता है P, Q, R, S complex. This is the representation of ECG. इस तरह से ECG रिप्रेजेंट होता है. यहाँ पर आपके ये सारे कॉम्प्लेक्स है, P, Q, R, S एंड T कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, Q, R, S, T क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वी विल स्टडी हियर कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इज, पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वी नो डेट देयर इज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द कार्डियक साइकिल. पहले क्या होगा इसमें, एट्रियल depolarization, atrial depolarization. Okay, atrial depolarization, or we can say atrial contraction, atrial depolarization और contraction और systole, contraction और systole बोल सकते हैं इसको. ठीक है, सेकेंड होता है इसमें atrial repolarization, और रिलैक्सेशन. ओके, नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल. ओके, फोर्थ इज वेंट्रिकुलर, यहाँ पर क्या होगा, रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन. तो ये इसमें बेसिक 4 स्टेप होते हैं. अब कौन सी वेव इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगी ये हमको पढ़ना है. ठीक है, 4 स्टेप ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज 4 स्टेप्स. ठीक है, अब कौन सी वेव इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो वी कैन ड्रॉ हियर. ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर, नाउ दिस P wave,
पी वेव जो है यहाँ पर इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पी वेव जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, and you have already studied about the atrial depolarization। होता क्या atrial depolarization हमने पहले कार्डिक साइकिल में पढ़ लिया है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें QRS वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, तो QRS वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द एट्रियल रिपोलराइजेशन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इसमें। नाउ टी वेव, इसमें जो टी वेव है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, दिस टी वेव रिप्रेजेंट इसमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोल सकते हैं इसको, एट्रियल रिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एक ही उसमें हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। सी हियर दिस पी वेव, ये पी वेव जो है, ये जो पी वेव है, इस पी वेव इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिस्टोल, ठीक है, पहला स्टेप जो है। उसके बाद में आपका है QRS कॉम्प्लेक्स, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल रिपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया क्या है इसमें रिलैक्स हो जाए, और क्या होगा इसमें, इसके साथ में क्या होगा, आपका वेंट्रिकल्स सबके कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को एक ही इसमें इसलिए लिया है इसमें दोनों में, क्योंकि इसमें ज्यादा गैप नहीं होता है, डेट्स वाई इसमें एट्रियल रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इसमें ले लेंगे आपका। नाउ नेक्स्ट इज टी वेव, टी वेव ये हो जाएगी आपकी टी वेव। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसमें आपका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब इसमें वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये हमने सारी पूरी प्रोसेस है कार्डियक साइकिल में, कंडक्टिंग सिस्टम में पूरा पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह से इसका ECG का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नाउ अब इसमें यहाँ देख सकते हैं हम इसमें कि ये जो है भाई, इसमें जो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग में ही जो स्टार्ट नहीं हो जाएगा इस वेव में, यहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपका यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, यहाँ आपका जैसे इस पॉइंट पे है कि यहाँ मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें, ये आपका क्या है, PQ कॉम्प्लेक्स, एक हो जाएगा आपका PQ कॉम्प्लेक्स। कहाँ तक रहेगा ये आपका, ये यहाँ तक, ये इस तरह यहाँ तक रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपका क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से इस पॉइंट से आपका स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ तक आपका, ये आपका यहाँ तक, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा नहीं यहाँ तक के फिर एकदम यहीं से स्टार्ट नहीं हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगी आपकी, इस पर पहुंचेगी पीक पर, यहाँ आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन, ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। ये PQ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये आपका ST कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पर वो QR कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर QR कॉम्प्लेक्स, इस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होंगे। तो ये क्या है आपका, ये आपका ECG का रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका ECG किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्डियक साइकिल या फिर कार्डियक एक्टिविटी।
electrical impulse in the heart. Electrical activity in the heart is represented in the form of a graph which is known as a electrocardiogram or ECG. ठीक है, ठीक है. अब इसको डिफाइन करेंगे. हाउ वी कैन डिफाइन द डिफरेंट इन एग्जाम्स. सपोज दे आस्क व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देन हाउ विल यू डिफाइन. सो यू इन फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देन डिफरेंट component of electrocardiogram. Okay, so these are the different component: P wave, QRS complex and T wave. Okay, the representation also here. The representation भी है इनकी. P wave क्या representation कर रहा है इसमें sorry एट्रियल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है इसमें. अब डिफाइन करें इसको तो एक क्या है, पी वेव क्या है. पी वेव इज द स्मॉल डिफ्लेक्शन, दिस इज द स्मॉल डिफ्लेक्शन. ये क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन. ये आपका क्या रिप्रेजेंट, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो जाएगा जो आपको एट्रियल डिपोलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद में आपका आता है QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स को किस तरह से बताएंगे इसमें हम. ये आपका होता है स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. स्मॉल पहले थोड़ा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो, स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. ठीक है, और अपवर्ड एक और क्या हो जाएगी इसमें, एक अपवर्ड. पहले डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ थोड़ा सा इसमें, फिर एक अपवर्ड ट्रायंगुलर डिफ्लेक्शन होगा इसमें. ट्रायंगुलर वेव आएगी, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं, डाउनवर्ड. ठीक है, वेव, ट्रायंगुलर वेव आएगी इसमें. ठीक है, और डाउनवर्ड, फिर उसके बाद में दोबारा से एक डाउनवर्ड वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड इन क्या हो जाएगी आपकी, डाउनवर्ड वेव. एक डाउनवर्ड वेव आ जाएगी इसमें, एंड इन डाउनवर्ड वेव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टी कॉम्प्लेक्स. क्या होता है तो सो टी वेव क्या होती है, डोम शेप. ये भी क्या है, डोम शेप्ड है. दिस इज डोम शेप्ड. ये भी एक डोम शेप्ड वेव है. अपवर्ड डिफ्लेक्शन, डोम शेप्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन. ओके, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं. और ये हमको पता ही है कि पी वेव क्या शो कर रही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन. देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या आता है आपका, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आ जाता है इसमें. और टी वेव में क्या आएगा आपका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. ठीक है, कुछ डायग्राम है इसमें आगे आपके, कुछ डायग्राम है ईसीजी के. देखिए मैं कार्डियक साइकिल भी एक डायग्राम, का भी एक डायग्राम बता देती हूँ इसमें. देखो इस तरह से, दिस इज डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल. इस तरह से इवेंट्स कौन कौन से इसमें, एवरी हार्ट बीट, इवेंट्स इन एवरी हार्ट बीट में कौन कौन सी इवेंट्स आएंगे. देखो राइट एट्रियम में क्या होता है आपका, और देखो ये लेफ्ट एट्रियम में किस तरह से ये है आपका. नेक्स्ट है आपका, और इसमें देखो एक कार्डियक साइकिल का भी डायग्राम देख लीजिए इसमें. ये इस तरह से कार्डियक साइकिल का डायग्राम है. सी हियर, देखो इसमें ये है कार्डियक साइकिल. इसमें ये आ रहा है आपका इस तरह से सिस्टोल. ये आपका जो येलो पोर्शन है, येलो पोर्शन आपका सिस्टोल शो कर रहा है, और आपका ग्रीन पोर्शन इसमें डायस्टोल शो कर रहा है इसमें. दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस लेक्चर. पूरा बताया था आपको कि किस पॉइंट पे आपका सिस्टोल होगा, किस पॉइंट पे आपका डायस्टोल होगा इसमें. ये देखिए इसमें ये पी वेव है, पी आर इंटरवल. ये पी वेव ये क्या शो कर रहा है आपका, पी आर इंटरवल शो कर रहा है. बाद में आपका ये आपका क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आपका. उसके बाद में आपका ये आपका एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट. ये पूरा क्यूटी इंटरवल हो जाएगा आपका. सेगमेंट है और इसमें इंटरवल है पूरा. ये आपको बताया है इसमें क्या क्या हुआ है. नेक्स्ट और देखिए इसमें सिस्टोल और डायस्टोल शो हो रहा है. ये आपका सिस्टोल डायस्टोल किस तरह से हो रहा है, देखो ये शो हो रहा है आपका इसमें. यहाँ पे जो एसवीसी है, ये एसवीसी आपकी सुपीरियर वेना के वो होती है, आईवीसी आपके इंफीरियर वेना के वो. तो यहाँ से आपका ब्लड इस तरह से आ रहा है, देखिए लंग्स के आपका इस तरह से आ रहा है. तो सिस्टोल डायस्टोल आपका, ये डायस्टोल है यहाँ पर, ये सिस्टोल है आपका. ये देखिए
तरह से ईसीजी में आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से ईसीजी में इस टाइप से आपको वेव दिखाई देती है इसमें। नेक्स्ट है आपका कि इसमें ईसीजी, आप मेन ईसीजी पढ़ने का क्या एम है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग ईसीजी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या, अभी हम ईसीजी पढ़ रहे हैं, हम क्यों पर्सन की ईसीजी निकालते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ ईसीजी, ईसीजी फाइंड आउट करने के क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट दैट द ऑर्गन दैट इज हार्ट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, कि जो हार्ट है आपका ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें वर्किंग ऑफ हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी जो है, कार्डियक एक्टिविटी, फर्स्ट टू फाइंड आउट द कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए अब वो आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है, जो हार्ट की वर्किंग है, वो आपकी नॉर्मल है या फिर आपकी एबनॉर्मल है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो जो हमारा जो नॉर्मल ईसीजी होता है, नॉर्मल ईसीजी से उसको कंपेयर करेंगे, कौन सी वेव बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो इसके कुछ आपके पैरामीटर्स हैं कि किस वेव के बढ़ने से आपका क्या चांस हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें आपका, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, है ना। जो ईसीजी का पैटर्न है डिफरेंट, अगर इसका पैटर्न डिफरेंट हुआ, ठीक है, इसका जो ईसीजी क्या है, अगर इसका पैटर्न डिफरेंट हुआ, पैटर्न इसका डिफरेंट हुआ नॉर्मल उससे, नॉर्मल ईसीजी से अगर किसी पर्सन का पैटर्न जो है ईसीजी का पैटर्न इज डिफरेंट, ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इट मींस एनी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब क्या पता लगा सकते हैं इसमें, एक तो इससे हमें पता लगता है नंबर ऑफ हार्ट बीट, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट कैलकुलेट हो सकती है इससे, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। पहली चीज तो इसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कार्डियक साइकिल कर सकते हैं काउंट, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल वो आपकी काउंट हो जाएगी इससे, ईसीजी से कार्डियक साइकिल, ठीक है, वो काउंट हो जाएगी। और क्या हो सकता है इसमें आपका, और क्या काउंट कर सकते हैं इसमें, जो साइज है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई इसमें जो साइज है इसमें वेव का, साइज ऑफ वेव से पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है इसमें, तो जो आपकी अगर सपोज इसमें आपकी जो एनलार्ज्ड पी वेव है, अगर आपकी इसमें पी वेव एनलार्ज्ड है, इफ पी वेव पता है हमको, फर्स्ट वेव जो थी पी वेव क्या है, वो क्या शो कर रही थी, आर्टीरियल सिस्टोल या आर्टीरियल डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन। और पी वेव जो है आपकी वो अगर एनलार्ज हो जाए आपकी इसमें ईसीजी में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एनलार्ज्ड पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट जो एट्रियम है वो बिकम बिग इन साइज। इसमें क्या हो जाएगा, जो एट्रियम है, ठीक है, ज्यादा अगर साइज बढ़ रहा है उसका पी वेव का, इसका मतलब ये है कि उसमें ज्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, एट्रियम का साइज बढ़ गया है, मीन्स जो एट्रियम आर बिग इन साइज। तो फर्स्ट ये हो गया आपका, अगर पी वेव अगर बढ़ रही है, एनलार्ज हो रही है, मतलब क्या हो गया, जो एट्रियम है वो क्या आपके साइज में बढ़ गए, दे आर इंक्रीज और दे आर बिग इन साइज। नेक्स्ट आपका इसमें अगर एनलार्जमेंट ऑफ आपका क्यू वेव हो गई, क्यू वेव अगर बढ़ गई है इसमें, क्यू वेव एनलार्जमेंट, क्यू वेव का अगर एनलार्जमेंट हो गया है तो क्या शो करेगा, अब हम पता है हमें क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहे थे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो कर रहे थे। तो क्यू वेव अगर बढ़ गई है इसमें तो क्या होगा, इसमें एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ क्या शो कर रही है, एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी और क्या हो सकता है इसमें, डिप्रेशन ऑफ टी वेव। तो टी वेव उसका अगर डिप्रेशन हो गया है तो टी वेव डिप्रेशन, अगर टी वेव का इसमें डिप्रेशन हो गया है तो क्या हो सकता है,
क्या चांसेस हो सकते हैं इसमें, क्या होगा, तो ये क्या होगा इसमें, मतलब नो प्रॉपर सप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ इट मीन्स डिप्रेशन, नहीं डिप्रेशन, टी वेव डिप्रेशन क्या शो कर रहा है, नो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, नो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। O2 की सप्लाई नहीं हो रही है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कब क्यों नहीं हो रही है, ड्यू टू ब्लड की वजह से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर इसको हम ब्लड भी बोल सकते हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, डिप्रेशन हो गया, अब टी वेव एलिवेशन हो गया अगर, तो उसका मतलब क्या होगा, एलिवेशन, टी वेव एलिवेशन, तो ये क्या शो कर रहा है इसमें, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का ज्यादा हो जाना। तो ये कुछ इसमें आपके एबनॉर्मल है कि हम जो ग्राफ है आपका जो ईसीजी, इसको पढ़ के हम बता सकते हैं, वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इफ देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी इन द प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पेशेंट, सो यू आर एबल टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ईसीजी, ठीक है। पीवेव रिप्रेजेंट, पीवेव का क्या होता है इसमें, पी वेव एनलार्जमेंट से क्या होगा आपका, क्यू वेव एनलार्जमेंट, क्यू वेव अगर बड़ी आ रही है आपकी, और टी वेव अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एलिवेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपके ये सारे इसके सिम्टम्स हैं इसमें, ये सारे आपके डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, एक और है आपका, अगर पी क्यू की लेंथनिंग हो जाए ज़्यादा, पी क्यू लेंथनिंग ज़्यादा हो गई, तो क्या है आपका, टिश्यू डैमेज, इट शोज द टिश्यू डैमेज, ठीक है। और आपका ये हो गया इसमें, अब क्यूटी, अगर क्यूटी की लेंथ नहीं हो गई, क्यूटी लेंथनिंग, हमने इसमें कॉम्प्लेक्सेस ले लिए इकट्ठे, वेव नहीं, हमने साथ में जो उनके इंटरवल्स हैं वो ले लिए हमने। अगर क्यूटी सेगमेंट का अगर इसमें लेंथनिंग हो रही है, तो टिश्यू, ये भी इस पर टिश्यू डैमेज, इसमें क्या, लेस ऑक्सीजन सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इसमें। और आपका एक हो इसमें एसटी सेगमेंट का क्या हो रहा है इसमें, एलिवेट हो रहा है आपका, मतलब बढ़ रहा है एसटी सेगमेंट आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हार्ट अटैक हो सकता है, इट में लीड्स टू हार्ट अटैक, ओके। देन एसटी सेगमेंट अगर डिप्रेस हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया एसटी सेगमेंट का, तो क्या होगा इसमें आपका, इसमें भी आपका लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द ईसीजी, ये आपका पूरा इसमें ईसीजी है इसमें। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हम सीख गए हैं इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, उसके सेगमेंट्स क्या होते हैं, और उसको हम कैसे पढ़ते हैं। सपोज इन देयर इज प्रेजेंट वन ईसीजी ग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस, एंड हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिजीज ऑफ द पेशेंट। तो ईसीजी को पढ़कर हम उस पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या एबनॉर्मलिटी है, वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ईसीजी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन एंड कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी उसका रेगुलेशन कैसा हो रहा है। थैंक यू।